बहुत बहुत धन्यवाद सर। एमपी सिंह साहब ने, देखो हमारे समाज के लोगों के अंदर कितनी ताकत है, वो एक बेसिक ऐसा रूट दिया है। ऐसे तो हजारों एमपी सिंह होंगे यहाँ समाज के, लेकिन हर किसी को हर जगह पे या हर प्लेटफॉर्म पे एक ब्रिज बनने की जो पीसीसीआई ने कोशिश की, और एमपी साहब ने जो दिल्ली की दायित्व लिया है, इसके लिए हम पीसीसीआई एक डायरेक्टर की नाते भी उनका धन्यवाद करते हैं। एमपी सिंह साहब का धन्यवाद। हमारे बीच में राजेश चावड़ा साहब आए हुए हैं, और वो हमारे समाज से बिलोंग करते हैं। उसने डीआईसी और हर जगह पे मैनेजर की हैसियत से और हमारी समाज की बहुत चिंता करते हैं। तो ऐसे राजेश चावड़ा साहब अपना वक्तव्य देंगे। राजेश चावड़ा द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम है, स्टेज पर बैठेला महानुभावों, વધારેલા મિત્રો, ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રની જ વાત કરીએ આપણે। મેં પણ રાજકોટની અંદર અહીંયા જનરલ મેનેજર તરીકે કામ કર્યું છે। સૌરાષ્ટ્રની હાઈ લેવલ કમિટી પણ બનેલી, એમાં પણ અમે કામ કરેલું છે। તમે સૌરાષ્ટ્રમાં તમે કહેવત છે, મેં જોવું ને કે ગુજરાતની અંદર તમે જુઓ ને, અત્યારે તમે સુરત જુઓ, અમદાવાદ જુઓ, બોમ્બે જુઓ, સુરતના મોટાભાગના ઉદ્યોગપતિ છે ને સૌરાષ્ટ્રના છે। હું એસસી સમાજ આપણે છીએ એટલા માટે આપણે એવું નથી ને કે આપણે શું છે, ડર આપણા અંદર છે, આપણે આગળ આવતા નથી કોઈ પણ વસ્તુ। આજે તમે જુઓ ને, અત્યારે ગવર્મેન્ટની સ્કીમો તમે જોઈ ને, આ તારની ચાલુ નથી। હું લગભગ 84માં જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર જુનાગઢ હતો ને, ત્યારથી આ બધી સ્કીમો ચાલે છે। પણ આપણામાં શું ડર છે ને, એ ડર કાઢવો પડશે। સૌરાષ્ટ્રના માણસો પથ્થરમાંથી પાણી કાઢે છે, ના તો ભાઈ સાચી વાત છે। આખા ગુજરાત ઓલ ઇન્ડિયામાં તમે જુઓ, એટલે આપણે શું કરીએ છીએ કે આપણે શરૂઆત જ નથી કરતા। જિલ્લા ઉદ્યોગની સ્કીમો સારી છે, નેશનલ હબની સ્કીમો સારી છે, ટ્રેનિંગ સેન્ટરો છે આપણા ગુજરાતમાં। સીયુડીની ટ્રેનિંગ સેન્ટર છે, તમને ટ્રેનિંગ આપે છે। અત્યારે તમે જુઓ ને, આપણા આખા સૌરાષ્ટ્રમાં જે સેમિનાર રાખ્યો છે, સૌરાષ્ટ્રની અંદર સાહેબ વોર્ડ ઉભરાઈ જવો જોઈએ। આપણે શું કરીએ છીએ, આપણે પોતે આવીએ છીએ પણ આપણા ફેમિલીમાં સેમિનારમાં નહીં લાગતા, આપણા એ આપણા છોકરા જ નથી લાગતા। તમે આટલા બધા માણસો બેઠા છે, આપણા ફેમિલીના લોકોને બધાને લાયા હોય તો મેસેજ કેટલો જઈ શકે। આપણે કરવું છે બધું, નોકરી 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 પણ કરું, નોકરી મળે તો ઓલ્ડ ઇન ગુડ। અમે તો વર્ષોથી કહીએ છીએ કે ભાઈ રૂપિયા સિવાય આગળ વધવાનું નહીં। પૈસાનું ઝાડ એસસી એસટી સમાજે રોપવું પડશે, પૈસાનું ઝાડ રોપવું પડશે। કે બહુ રાજકારણ નહીં ચાલે, રાજકારણ તો વર્ષોથી ચાલે છે ભાઈ, આપણે આઝાદીથી રાજકારણ રમ્યા છે, તો એસસી એસટી સમાજ શા માટે પાછળ છે ભાઈ? આપણે અહીંયાથી નક્કી કરવું પડશે। આજે બધા સમાજો તમે જુઓ ને, આખા ગુજરાતની વાત કરું ને, પટેલ સમાજ જુઓ, બ્રાહ્મણ સમાજ જુઓ, બધા સમાજો અત્યારે પોતાના બિઝનેસ સેન્ટરો સ્થાપે, અને આપણે હજુ વિચાર કરીએ છીએ કે માર્ગદર્શન લેવું છે। ભાઈ માર્ગદર્શન બધા માણસો ભણેલા છે। આજે એજ્યુકેશન સિસ્ટમમાં તમે જુઓ ને, આપણી પાસે એમબીએ લાખો છે સાહેબ, લાખો એમબીએ છે આપણા ઇન્ડિયાની અંદર। હું તો પીસીસીઆઈને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે કોલ ધ હોલ એમબીએ, તમે ઇકોનોમીનો ઉઠાવો ભાઈ। આજે તમારી પાસે શેર બજારના તમે જુઓ ને, કોઈ માણસને ખબર નહીં હોય આપણે ત્યાં ટ્રેડિંગ કેટલું થાય છે, 40 થી 50 ટ્રેડિંગ હાઉસો છે સાહેબ। એમાં આપણા માણસો કોણ છે સાહેબ? ઇકોનોમી હલાવી હોય ને તો પાયાને ખોદવો પડે, ખાલી વાતો કરવા મેળ નહીં પડે કે બેંક લોન નહીં આવે। બેંકોની લોન આપે તો લઈ લો ભાઈ, આપણે બિઝનેસ નાના પાયા પરથી કરે। એમએસએમઈ એટલે તમારે બધાને એમએસએમઈ એટલે આપણને એવું મોટું મોટું લાગે છે, ઉદ્યોગ કરવો એટલે કે ટાટા બિરલા નો, એ થિંક ઓવર, એ જો એ વિચારવાનું જ નથી। તમે એક સિલાઈ મશીન ઘરમાં રાખ્યું ને, તમે એમએસએમઈ છો, તમે ઉદ્યોગ આધાર મળી જશે। બીજું તમને જે ખેડૂતો છે સૌરાષ્ટ્રની અંદર, આજે ગુજરાત સરકારે 2017-18ની અંદર એક નોટિફિકેશન જાહેર કરેલું છે કે પોતાની જમીન હોય તો 3 વર્ષ સુધી એને કરવાની જરૂર નથી। કોઈને ખબર છે આટલા લોકોને કોઈને ખબર છે કે 3 વર્ષ સુધી એને કરવાની જરૂર નથી? તમને લોન પણ બેંક આપશે, પાવર પણ તમને આપશે। આપણે નોલેજ શેર કરવાની જરૂર છે। આજે અમે 68 વર્ષના છીએ ને, તો આજે પેપર કટિંગ લાવે છે,
હું પેપર કટિંગ કરું છું, મારા વિશેષ શું કે શું કામ કરો છો ભાઈ? પણ આપણને એવું છે કે ભાઈ સમાજના લોકોને ગાઈડ, બધા ગાઈડ તો છે જ. આજે તમે જુઓ ને બધા પાસે મોબાઈલ છે. નાની મારી 3 વર્ષની બાબાની બેબી છે ને, એને ઓપરેટ કરતા આવડી ગયું. તમે વિચાર કરો. એટલે આપણને અવેરનેસ નહીં છે, અવેરનેસ તો છે જ ભાઈ. આપણે સાહસ કરવાની જરૂર છે. તમે આજે નક્કી કરીને જાઓ અહીંયાથી આટલી બધી પોલિસી પછી કે તમારે શું કરવું છે, તમારા ભાઈને શું કરવું છે, તમારા મિસિસને શું કરવું છે, તમારા બાબાને શું કરવું છે. નક્કી નહીં કરો, તમે એન્ટરપ્રેન્યોર બની નહીં શકો. બધા ઉદ્યોગ સાહસિક બનવા માટે બધી જ આખી ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા તૈયાર છે. આપણે કહીએ ને કે રાજકારણ લડે છે, કોઈ અમે બધી સરકારોનું કામ કર્યું, ભાજપ, રાજપ, કોંગ્રેસ, કોઈ સરકાર લડતી નથી ભાઈ, કોઈ સરકાર લડતી નથી. આપણે પોતે લડીએ છીએ. અમે સરકારમાં બેઠા છે ને, બધી સરકારમાં કોઈ નડ્યું નહીં મને તો ભાઈ. અમે લોકોને જાહેરમાં કહ્યા, નાથુભાઈને ખબર છે સુરતની અંદર કે જાહેરમાં કીધું કે ભાઈ તમારા માટે અમે બેઠા છે. પહેલો સેમિનાર અમે ચેમ્બરમાં કરેલો, ચેમ્બરવાળા કે હો પહેલો સેમિનાર અમે SC/ST નો કર્યો. એટલે આપણે બહુ જાજુ હું કહેતો નથી, પણ તમે તૈયાર થઈ જાઓ. બીજું PCCIને કહું છું કે અત્યારે PMGP એક કરોડ રૂપિયા લોન છે, સરકારે બાન મૂકી દીધો છે. સેન્ટ્રલ લેવલ પર હાથ ધરવું પડશે. તમારી પાસે SC/ST નિગમો છે, એટલે અત્યારે કોઈ છે SC/ST નિગમનો અધિકારી, કોલ ધેમ. SC/ST ભાઈ ફંડ નથી ભાઈ આપણી પાસે, 1 કરોડ રૂપિયાનું ફંડ આપણી પાસે SC નિગમમાં. વોટ યુ ડુ આટલી બધી વસ્તી? તો PCCI સેન્ટ્રલ લેવલ ઉપર પણ આવી બધી સ્કીમો જે બંધ છે, બાન મૂકી દીધું ગુજરાતમાં. સુરતમાં અમે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર રોજગાર યોજનામાં ઘણા કેસો કર્યા ને સાહેબ, તો આખા ગુજરાતનું બાન મૂકી દીધું. ચાલુ કરવાની જરૂર છે. એમાં 5% માર્જિન છે સાહેબ, 5%. તો આવી બધી સ્કીમોનો આપણે લાભ લઈએ. અને બીજી એક તકલીફ શું છે, આપણા સમાજની વાત કરું, મેં કાંઈ બેંકો સાથે બહુ કામ કર્યું. 60% રેશિયો હોય છે રિજેક્શન. શા માટે? કે હવે આપણે જેમ આપણું જેમ સ્ક્રીનિંગ કરીએ છીએ ને બોડીનું, સાહેબોએ બધા વાત કરી કે સ્ક્રીનિંગ કરો. તમે પાન કાર્ડ હોય તો નીલ રિપોર્ટ, નીલ તમારું એ કરો, બેંકનું તમે નીલ કરી નાખો, અને પછી તમે પ્રોજેક્ટ બનાવો. આપણી પાસે સાહેબ એક CA પણ સારો રાખવો પડે, નેશનલ લેવલ પર, સ્ટેટ લેવલ પર, ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલ ઉપર. એ પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ બનાવો પ્રોપર, વાયેબલ પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ બનાવો. બેંક શા માટે રિજેક્ટ કરે છે? કે વી આર રિજેક્ટિંગ ઓન ધ વાયેબિલિટી પ્રોજેક્ટ નથી. આ જ મોટામાં મોટો પ્રશ્ન SC/ST સમાજ. વાયેબલ નથી એટલો શબ્દ લખી નાખો. આપણે વાયેબલ પ્રોજેક્ટ કરીએ અને બેંક પાસે જઈએ તો સરકાર તમારી સાથે છે, આ NGO બધી સાથે છે, આપણે ચેમ્બર પણ સાથે છે, અને અમે પોતે પણ મદદ કરીએ છીએ કે પ્રોજેક્ટનો જ પ્રોબ્લેમ છે. પ્રોજેક્ટ બનાવવાનો હોય તો કોની પાસે જવું પડે? તો આપણે એ પણ માળખું તૈયાર કરવું પડશે. તો આટલું કહેલું કીધું છું. આપણે ધન્યવાદ ચાવડા સાહેબ. એની તમે એનો ગુસ્સો દેખાતો હશે મિત્રો, શું કામ? આપણે ઘણા અધિકારીઓ છે ને, ઘરે જઈને રિટાયર થયા પછી ઓડકાર આવે ને સિદ્ધાર્થભાઈ, એટલે શું કરે? પેટ ઉપર આ હાથ ફેરવા વાળા નથી, મતલબ પીડા થાય છે કે તમે કેમ આગળ નથી આવતા. અમે 15 વર્ષ પહેલા સાહેબના નેજા હેઠળ આજે હું તમારી સામે મિત્રો લઉં છું ને આ પ્રોગ્રામ, અમારો 10મો પ્રોગ્રામ હશે, કદાચ 11મો પ્રોગ્રામ હશે, કદાચ એનાથી વધારે હશે. આજે હું છેલ્લા 20 વર્ષથી આ કાર્ય કરી રહ્યો છું. મિત્રો આપણે બધા આપણામાં શક્તિ પડી છે, એને આપણે વધારે ઉજાગર કરીએ. હવે PCCI ના કન્વીનર જીતેન્દ્ર કુમારને વિનંતી કરું કે આપણો આ હોલની મર્યાદા છે, સમયની મર્યાદા બધાએ સાચવવાની છે. કાગળો તો આપણી પાસે મોટા હશે, પણ આપણે બધાએ 1:15 વાગે આપણે હોલ ખાલી કરવાનો છે, એટલે એ રીતે આપણે બધાએ સૌ મેન્ટલી તૈયાર થઈ જાય. ધન્યવાદ. જીતેન્દ્ર કુમાર. Respected dignitaries on the desk, honorable guest, esteemed industry leaders, member of the trade association, young entrepreneurs, ladies and gentlemen, a very good afternoon to all of you. It is a matter of great honor and pride me to, as the Chief Convener of the Progressive Council of Commerce Industry, to address you today at the prestigious Swaraj Juvan Industry Empowerment Awareness Seminar here in Rajkot, a land known
फॉर एंटरप्राइज, करेज, कल्चर एंड इनोवेशन। साथियों, मैं पॉलिसी काउंसिल कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री का कन्वीनर भी हूँ, नेशनल डायरेक्टर भी हूँ। तो ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि जिस तरह आज हम इस हॉल में बैठे हैं, इसकी जर्नी हमको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये काम हम पिछले 5 वर्षों से 31/10/2020 से हम लोग मेरठ से शुरू होकर हमारे बीच हमारे पीबीए के अध्यक्ष श्री सुंदरपाल जी और हमारे कोर टीम में श्री परविंदर कुमार जी आज यहाँ हैं, जिसकी वजह से ये टीम बाकी 5 लोग आज किसी कारण से नहीं आ पाए हैं, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने आज से 5 वर्ष पूर्व मेरठ से की थी। आज लगभग 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद हमको ये लगता है एक बहुत बड़ी यात्रा करने के बाद आज हम गुजरात पहुँचे हैं, जो अभी हमने ऐसा सोचा नहीं था। हमने सोचा केवल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया तक सोचा था कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जाकर एक अपनी बहुत बड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस करना है, लेकिन उसके बाद जो नींव रखी गई मैं उसको आपको बताना चाहता हूँ। जब हम 5 वर्ष पूर्व हमने एक काम शुरू किया था, तो इस क्षेत्र में बिजनेसमैन, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेशनल को एक साथ जोड़ने के लिए हमने ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की थी। और हम लोग गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ PBWS के रूप में, चाहे NSSIC हो, NSSH हो, मेक इन इंडिया हो, स्किल इंडिया के ऑफिसर के साथ हम लोगों ने अपना ये जर्नी शुरू की थी और एक हमारा रिकॉग्निशन शुरू हो गया। 2020 से लेकर हम लोग मेरठ में, नोएडा में, और लास्ट जो हमने कॉन्फ्रेंस की वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब इंडिया में 27 अप्रैल 2025 को की थी, जिसमें हमारे पैट्रन के रूप में श्री भगवान गवई सर, अनफॉर्चुनेटली वो आज यहाँ है नहीं, और उनकी तबीयत खराब होने के कारण उन्होंने अपने आप को हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पैट्रन डिक्लेयर किया। मैंने एक किताब पढ़ी थी पेमेल परियार सर की, कॉल्ड से करोड़पति तक, जिसमें उनकी जर्नी के बारे में बताया गया। ये बताना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि जर्नी का पता होने से आदमी को पता लगता है कितने फोर्स, कितने लोग उसके पीछे काम कर रहे हैं। उस 27 अप्रैल 2025 की जो कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, 200 लोगों से ऊपर लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, और उसी में भगवान गवई सर और डॉक्टर जयप्रकाश IAPS के मालिक बंगलौर से, राजेश कुमार चेन्नई से, स्वर्णलता मैम हैदराबाद से, विशाखा मैम पूना से एंड दीपक बागले सर पूना से पार्टिसिपेट किया। तभी इसकी नींव रखी गई थी। तभी ये प्लान हम लोगों ने पूरी पीबीए ने रिक्वेस्ट किया श्री गवई सर को कि हम आपकी लीडरशिप में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, फिक्की की तरह हो, डिक्की की तरह हो, और हमारा वो लेवल हो। फिक्की का इस्टेब्लिशमेंट 1925 में, आज से 100 वर्ष पूर्व हुआ। हम लोग इस मुकाम पर पहुँचे कि 100 साल बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन, बाकी अन्य ऑर्गेनाइजेशन फिक्की के रूप में काम कर रहे हैं, हमारा अपना PCCI हो। और इसका 25 अगस्त 2025 को एक नेशनल सेक्शन एक कंपनी बनी, और उसके बाद PCCI की जर्नी स्टार्ट हो गई, जिसमें हम देखते हैं कि श्री नाथू सोसा जी, जिनकी हमारी मुलाकात उनसे नेशनल कॉन्फ्रेंस PCCI की जो पूना में हुई थी, वहीं मुलाकात हुई, और जूम पर तो मीटिंग होती रहती थी। हम उनके आभारी हैं। उनका पोटेंशियल, उनकी जिंदा दिली देखकर हमको लगा कि गुजरात को वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो डिज़र्व करते हैं कि यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट हैं और स्टेट प्रेसिडेंट बने, जिसकी वजह से ये सफल प्रोग्राम आज हम सबके बीच हो रहा है। वो बधाई के पात्र है। उनकी टीम की एक पूरी टीम, जिनको मैं कल हम लोग यहाँ कल से यहाँ आए हुए हैं, और उनकी हॉस्पिटलिटी के लिए हम सिद्धार्थ भाई जी को, CK ठाकुर जी को, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये जर्नी आज जो PCCI की जो कॉन्फ्रेंस हम लोग इनिशियली, अब इसका एक्सपेंशन करने के लिए धीरे धीरे हम डिफरेंट स्टेट में 4-5 स्टेट के लोग हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं जो इसको हेड करेंगे। और उसके बाद हम लोगों का प्लान आगे ये है कि इसकी हम एक प्लान है कि किसी तरह हमारा PCCI का ऑफिस, जिस तरह की PCCI का हेड ऑफिस क्या कहते हैं कि दिल्ली में हो, जैसे फिक्की का दिल्ली में है, उसके लिए प्लानिंग कर लिया गया है। बात तैयारी चल रही है। एक प्लॉट 200 गज का, जिसकी कॉस्टिंग 20 करोड़ रुपीज़ है, जिसमें 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। वो भगवान गवई साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अभी उनकी तबीयत खराब होने के कारण हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। इट इज़ ए वेरी अंडरस्टूड कि दिल्ली में हमारा फिक्की की तरह PCCI का ऑफिस हो, और हम लोग ग्लोबली, फिर बाद में दुबई, US, लंदन, अभी जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो PCCI के तहत हम लोग गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट के पैनल के रूप में अपना ये मिशन पूरा करेंगे, और करने के लिए हम लोग पूरी तरह प्रयासरत हैं।
हम लोग आगे आगे मैं इतना कहना चाहता हूँ कि किसी भी तरह हमको इस मूवमेंट को आगे रखना है। मैं इतना और बता देना चाहता हूँ, मैं इलाहाबाद बैंक से एक्स चीफ मैनेजर रिटायर हूँ और उसके बाद हम लोगों ने ये शुरू किया और आई एम वेरी हैप्पी टू सी श्री मिस्टर घनश्याम कुमार जी दैट आवर जोनल हेड इज हियर। उनका डेलीवेशन देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट करके अपना जो महत्वपूर्ण समय दिया और लोग मोटिवेट किया। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी प्लीज टू हिम एंड वेरी थैंकफुल टू हिम। अभी जो जहाँ हमारा PCCI का अकाउंट पार्लियामेंट्री ब्रांच में खुला हुआ है, जब हम श्री सुंदरपाल जी के साथ उस ब्रांच में विजिट किए, वहाँ की AGM मैम थी, तो जब उन्होंने बताया तो उन्होंने रेस्पेक्टफुल्ली हमको सुनने के बाद वो खाता हमारा खोला। उन्होंने कहा आउटराइटली, सर जब भी कोई दिल्ली में कोई कॉन्फ्रेंस हो आई वांट टू ज्वाइन। उनके सेकेंड अफसर फर्स्ट अफसर दोनों ने कहा सर हम हमें जरूर बुलाइएगा, दैट वी विल ज्वाइन योर एनी कॉन्फ्रेंस, क्योंकि हम 27 अप्रैल पहले कर चुके थे, खाता बाद में खुला। तो बैंकर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, हमारा अपना 40 साल का करियर है, जिसके बाद हम लोगों ने ये इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में, वुमेन के क्षेत्र में, यूथ के क्षेत्र में हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। आपको ये जानकर खुशी होगा कि हम जो 5 साल से काम कर रहे थे, चौथी कॉन्फ्रेंस में 25 हमारी महिलाएं, यंग वुमेन, बैज ए बिग बिजनेसमैन, एक सक्सेसफुल जो एक स्मार्ट लैपटॉप वाले बच्चे होते हैं, वो जब मीटिंग में जब आते हैं तो फर्राटी की अंग्रेजी बोलते हैं। इट इज़ ए मैटर ऑफ प्राइड कि जब वो फोटो हमने ग्रुप में डाले अपने, तो ग्लोबली हमारा वेबसाइट पर है, तो हमको मुंबई से फ़ोन आया। उसने बोला सर ये कौन लोग हैं, कॉल मी एज ए कन्वीनर टू मी, सर ये सब लोग कौन है, अपने हैं, ऐसा उन्होंने हमसे कहा। मैं कहा 500% अपने हैं, दिस द क्रीम द फ्यूचर प्लान ऑफ द कंट्री। हम यहाँ पहुँचे हैं, ये हमारा इट इज़ ए मैटर ऑफ प्राइड ऑफ द। इन शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ, जो हमारी इस हॉस्पिटलिटी के लिए आप लोगों ने हमको जिस तरह, हम लोग अपने परिवार के साथ आए चारों लोग, और मैम हमारे साथ है, सभी लोग अपने मैडम के साथ हैं। हम गुजरात घूमने का हमको मौका मिला है, आपके साथ रहने का, यहाँ जो आपने हॉस्पिटलिटी की उसका बहुत बहुत दिल से मैं अपने PBA की तरफ से, PBWS की तरफ से, PCCI की तरफ से कन्वीनर होने के नाते आप सबका हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ, स्पेशली नाथू सोसा जी का, जिनकी वजह से हमको ये यहाँ आने का मौका मिला। इट वाज ट्रस्ट, भगवान गवे के बाद इस सिस्टम में हमको बियॉन्ड अपने एरिया का है तो नाथू सोसा जी में है। नाथू सोसा जी वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, वो डिजर्व करते हैं कि किसी भी तरह इस मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए जब भी नाथू सोसा जी हमको बुलाएंगे या हम उनको बुलाएंगे तो हम उनका धन्यवाद करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे कि वो जरूर हम उनको आपका जो ये बिजनेस मॉडल है अपने नॉर्थ इंडिया में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इन सब का बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत आभार जितेंद्र कुमार, आपने जो बात है कन्वीनर के नाते जो विषय को रखा, अपनी PCCI की जर्नी को, इसके लिए से दिल से आपका धन्यवाद। મારા મિત્ર અને જેણે સમાજ માટે ઘસાવાની જેને તૈયારી છે અને ઘસાવાની જેને એમ કે ને ઉજળા થવાની, એવો મારો મિત્ર સિદ્ધાર્થ પરમાર ને હું વિનંતી કરું કે આ સમાજ અને સમાજને આપણે જો દોરીને જઈએ તો આપણને આવનારો સમય ખાલી જગ્યા માં ગણશે। આપણે એવા બધાય ન બનીએ અને સમાજ માટે ઘસાઈએ, સમાજને કંઈક ને કંઈક દિશા આપીએ, એવા ઉદ્બોધન માટે માય ડિયર સિદ્ધાર્થ પરમાર। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, महामानव तथागत गौतम बुद्ध, मंच पर उपस्थित समाज के सब श्रेष्ठी और यहाँ उपस्थित हमारी समाज के सब उद्यमी सामाजिक आगेवान, माननीय श्री हमीर भाई छावड़ा, किशोर भाई सागठिया, डॉक्टर भानजी भाई, मावजी भाई राखसिया, शैलेश भाई परमार, अपने भाई प्रकाश भाई सोलंकी, जीतू भाई मैड़ा, दिनेश भाई पढ़ाया, हमारे परम मित्र मौर्य साहब, सभी के नाम तो मैं नहीं ले सकूंगा, मुकेश भाई परमार। आज का जो कार्यक्रम राजकोट में आयोजित हुआ है, पूरे सौराष्ट्र के माध्यम से मैं नाथू भाई सोसा जो मेरे दोस्त है, मेरे फ्रेंड है, उनका मैं हार्दिक अभिवादन करता हूँ
कि इतना बड़ा कार्यक्रम इन्होंने और हमारे इतने बड़े मार्गदर्शक जो है हमें उन सबसे हमको मिलाने का उन्होंने जो हमें मौका दिया है उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। समय की मर्यादा है, आई थिंक 1 बजे के आसपास हॉल खाली करना है। तो इसके बाद जो कार्यक्रम है वो हमारे नगर सेवक है राजकोट के नीलेश भाई झलू, उनका कार्यक्रम है यहाँ पे। तो अभी उनको मैंने फ़ोन किया तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, तो उन्होंने हमें 15 मिनट और दिए, तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे ज़्यादा आभार मैं परीक्षित भाई का व्यक्त करूँगा। परीक्षित भाई ने जो मेहनत की है 2-3 महीने तक, तो उनकी मेहनत भी सराहनीय है, क्योंकि उनके बच्चे भी सेट हो गए, उनको कोई काम नहीं है। अगर ये नहीं करते तो भी उनको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने किया, तो ये समाज के लिए एक अच्छा मैसेज है। दूसरी बात ये है कि अभी जो मेरे पहले जिन वक्ताओं ने अपना वक्तव्य यहाँ पे व्यक्त किया, उन्होंने आपको एक मार्गदर्शन दिया है। उन्होंने एक बिल्डिंग बना के आपके सामने खड़ी कर दी है कि ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में, इस बंगले में आपको जाना है। उस बंगले में जाने के लिए दरवाजा आपको खोलना है, और दरवाजे की सबसे बड़ी चाबी जो है वो हमारे संस्कार है। अगर हम लोगों में संस्कार का सिंचन नहीं होगा, हम लोगों में जब तक हम संस्कारी नहीं बनेंगे तब तक हम में समर्पण की भावना नहीं आएगी, और जब तक समर्पण की भावना हमें नहीं आती है, हम किसी भी क्षेत्र में जाएंगे हम सक्सेस नहीं हो सकते। हमें सक्सेस होने के लिए ये जरूरी है। मुझे मालूम है, मैं विधायक रह चुका हूँ। मेरे समय में ही पहला वाइब्रेंट गुजरात हुआ था 2017 में। तो तब मैं देख रहा था मुकेश अंबानी थे, अदानी थे, ये सब बहुत बड़े बड़े उद्योगपति थे। उस समय मुकेश भाई इसी तरह बैठे हुए थे, किसी का फोन आया तो उन्होंने बोल दिया कि अभी नहीं, कार्यक्रम खत्म होने के बाद मुझे फोन करना है। उनकी 1 सेकंड अगर ध्यान नहीं देते तो करोड़ रुपये कम हो जाता है, नुकसान होता है, मुनाफा होता है। 1 सेकंड की उनकी कीमत होती है। फिर भी उन्होंने ये कहा कि भाई अभी इस कार्यक्रम के बाद मुझे बात कराना, किसी का फोन मत देना। और हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास जेब में शायद 100 रुपये भी नहीं है, और किसी का भी फोन आता है सीधे बाहर। हम यहाँ टाइम पास करने आए या फिर कुछ सीखने आए, तो ये संस्कार की बात है। जब तक ये हम लोग नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते, न पॉलिटिकली, न इकोनॉमिकली, न सोशली। संस्कार से समर्पण आता है। हमने हमारे अमीर भाई चावड़ा यहाँ पे बैठे, बहुत सीनियर हमारे सामाजिक आगेवान हैं, उनको हमने बहुत बार सुना है यहाँ। मैं विधायक हो गया उसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे बड़ा हो गया। तो ये सब हमें चाहिए। कुछ चीजें हुई यहाँ पे, हम लोग राह देख कर बैठते हैं कि गवर्नमेंट हमको कुछ देगी तो हम बिजनेस बनेंगे, गवर्नमेंट हमको ये देगी तो हम नहीं, इससे बिजनेसमैन हम नहीं बन सकते। हम एक भीख की राह देख कर बैठे हैं। सॉरी, माफ करना। गवर्नमेंट अपना कर्तव्य निभा रही है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? हम अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे। नाथूभाई सोसा, उनके परिवार ने कहाँ पे लोन ली थी, आज वो करोड़पति है। ऐसे बहुत सारे हैं। मौर्य जी ने कहाँ पे लोन ली है। आज बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसे हैं, करोड़पति है, उन्होंने कभी लोन भी नहीं ली। हमारे प्रवीण भाई सुंदरवाई बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने कभी लोन नहीं लिए। तो ये आपके अंदर किलिंग इंस्टिंक्ट होनी चाहिए कि हमें ये करना है। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि हमें ये करना है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। मुस्लिमों को कहाँ गवर्नमेंट से आज तक मौका मिला है, कहाँ लोन मिली है उनको? अब महाराष्ट्र या बॉम्बे में जाया, 50% से ऊपर होटल बिजनेस में वो है, नहीं मिली है साहब। मेरा बेटा है, मेरे 2 भतीजे यहाँ पे बैठी है, उनके अमेरिका में होटल है, तीनों अभी अंडर 22-25 है। गवर्नमेंट से कोई लोन नहीं लिया हम लोगों ने, आज तक नहीं ली है। तो दे रहे हैं तो सही है, लेकिन नहीं दे रहे तो उसकी राह देकर हम बैठे, ये भी नहीं है। अभी सिविल की बात हुई तो अदानी का सिविल बहुत बढ़िया, आप जानते हैं। अंबानी का सिविल बहुत बढ़िया है, हम जानते हैं। उनको करोड़ों की, अरबों रुपये की लोन मिलती है, क्यों मिलती है वो भी हम जानते हैं। तो इस अच्छे ऑफिसर आएंगे बैंक में या कहीं पर भी, तो वो हमारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे, हमको मिलेगा तो ठीक है, लेकिन इस सहारे मत बैठिए।
हम अपने बलबूते पर कुछ करें। नाथूभाई जैसा आदमी जब सौराष्ट्र में हमारे लिए आए तो हम सबको मिलकर कुछ करना चाहिए। हमारे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि कोई अच्छा करने निकलता है तो उसकी पहले टांग खींच लो। मैं एक बात कह के अपनी बात पूरी करूंगा कि मेरा एक फ्रेंड है, वो जैन है, उसका बहुत बड़ा बिजनेस, आई थिंक 1000-1500 करोड़ का उसका बिजनेस है। तो उसको बिजनेस में थोड़ा घाटा आ गया कि अब बिजनेस कैसे खड़ा किया जाए। तो उनका जो जैन धर्म के जो मुनि होते हैं उनको उन्होंने बताया कि मेरा ये प्रॉब्लम है और मैं इस तरह फंस गया हूँ, मेरा बिजनेस चौपट हो रहा है और बहुत नुकसानी में मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने, ये शायद बात मुझे यहाँ नहीं कहनी चाहिए लेकिन फिर भी कह रहा हूँ, उन्होंने हमारे यहाँ भारत की एक बहुत बड़ी संस्था चलती है जो बॉम्बे में है, उसका नाम मैं नहीं लूँगा, जहाँ से शेयर के भाव अप डाउन होते हैं। तो उसके चेयरमैन को उन्होंने फ़ोन किया, क्योंकि उसका चेयरमैन भी जैन है। उसको फ़ोन किया कि अपना एक आदमी आर्थिक तौर पे ख़त्म हो रहा है तो हमें उसको मदद करनी है। उन्होंने बोला स्वामी जी कोई बात नहीं, मेरे पास भेज दो उनको। उन्होंने कहा कि कल में इस शेयर के भाव डाउन हो रहे हैं, आप वो सब शेयर खरीद लो, फिर 3 दिन के बाद वो अप होंगे, आप इसमें से निकल जाएंगे। उस आदमी ने अपना ज़्यादातर पैसा लगा के उस कंपनी के शेयर खरीद लिए। उस कंपनी के शेयर उसके पास आ गए। 3 दिन के बाद जो 50 रुपये का या 100 रुपये के शेयर था वो 4000, 5000, 10,000 के ऊपर चला गया। वो जिसमें फंसा था उसमें से वो निकल गया। वो कैसे हुआ? वो इसलिए हुआ कि उसका आदमी वहाँ पर बैठा था। जब तक हमारा आदमी ऐसी जगह पर नहीं बैठेगा तब तक कुछ नहीं होगा। दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ, दूसरी बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि नौकरी में मत रहिए, ये बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन चपरासी की नौकरी में मत रहिए। IAS IPS तो हमें बनना है, क्योंकि IAS IPS हम बनेंगे ना तो ED में भी हम चाहिए, CBI में भी हम चाहिए, और जो हमें पसंद नहीं करता है, आने वाले बहुत अच्छा समय शायद हमारा आएगा तो हमारा प्रधानमंत्री बनेगा तो उसको भी ये CBI IB सब चाहिए। तो हमें IAS IPS IFS IRS बनना है। मेरी बेटी दिल्ली में वाजीराव में UPSC का प्रिपरेशन कर रही है, तो इस जगह पर हमको जाना है, हमें ऊपर जाना है। ये सब हमारे लास्ट में मैं बोलूँगा कि एक वक्ता है, आई थिंक वो कभी भी है, तो उसने ये कहा था कि ये एप्पल सब बंद कर देंगे हम। 140 करोड़ की आबादी हमारे भारत की है, वो SC ST OBC का नहीं था। उसने ये पावर से कहा कि हम आपका ये जो विदेश से जो भी सामान रहा है हम नहीं खरीदेंगे, आप भीख मांगने लगेंगे आपकी कंपनियां। वो उसने 140 करोड़ भारत की जो जनसंख्या है उसके आधार पर उसने कहा। तो 140 जनसंख्या के आधार पर दूसरा कोई किसी देश की कंपनी को डरा सकता है, तो 140 में से तो आई थिंक 120 तो हम ही है। तो हमारे दम पर कोई दूसरी कंपनियों को धमका रहा है तो हम क्यों नहीं धमका सकते हैं? हम इसलिए नहीं धमका सकते हैं क्योंकि हम इकट्ठा नहीं है, हम यूनाइटेड नहीं है, और सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो हम लोगों में एक दूसरे के प्रति जेलसी है। अगर हम ये जेलसी को खत्म कर दे, कोई अच्छा काम करने निकला है उसके साथ हो जाए, उसको हम सपोर्ट करें, तो मैं मानता हूं कि बाबा साहब आम्बेडकर और काशीराम साहब ने जो सपना देखा था कि भारत के मालिक हम होंगे, तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें एकत्रित होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए। और नाथू भाई को मैं आज यहाँ से एक वचन देके जा रहा हूँ कि आने वाले दिनों में हम पूरे सौराष्ट्र से 1000 ऐसे उद्यमी इकट्ठा करके आपको देंगे जो सिर्फ पैसा कमाना नहीं जानते हैं, अपने पैसों से बाबा साहब का मिशन भी चलाना जानते हैं। ऐसे हम 1000 लोग आने वाले दिनों में हम आपको देंगे। हमारे यहाँ विपक्ष के नेता है, बहुत लड़ायक है, वसराम भाई सागठिया। हमने सौराष्ट्र में सब पार्टियां तोड़ दी है। कल हमारे घर पे जो आए थे उन्होंने सबने देखा, हमने सौराष्ट्र में पार्टी का बैरर ही तोड़ दिया है।
बीएसपी, एसपी, कांग्रेस, बीजेपी, जितनी भी पार्टियां हैं यहाँ इस गुजरात में, हम सब मिलकर इकट्ठा काम कर रहे हैं। और फरवरी में शायद 18 या उसके आसपास एक पूरे सौराष्ट्र एक चिंतन शिविर हो रहा है। उस चिंतन शिविर में हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, हमारी समाज के लिए हमारा दायित्व है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसमें हमने प्रकाश राव आंबेडकर साहब, राजकुमार भाटी जी आपके यूपी से हैं, तो इन बड़े बड़े जो वक्ता है उनको भी हमने इसमें निमंत्रित किया। उनका 45 मिनट का एक वक्तव्य हमने रखा है। और हम चाहेंगे नाथू भाई कि हम जो बैंक के बारे में समझा सकते हैं, हमारे नए उद्यमी को तैयार कर सकते हैं, ऐसे वक्ता आप में भी से हमारे इस कार्यक्रम में आए। आपने मुझे यहाँ बुलाया, आप सबका धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। ગ્રુપમાં બેઠો છે અને એનો મને આનંદ છે। મિત્રો, એક એક શબ્દ છે ને એ તમે કહેવાય ને કે અનમોલ છે, આપણે આમાંથી બધાએ પકડવાની જરૂર છે અને तभी तो हमारा समाज का विकास होगा। जो भी हम कर पाएंगे ऐसे लोगों को, सर सिद्धार्थ भाई ने जो बताया कि भाई IRS IPS बनना चाहिए, वो हमारे बीच में सर बैठे हैं सुंदरपाल सर, उसका लड़का भी IPS है 2011 बेंच का, IRS है उनकी 2015 बेंच के, और उनकी डॉटर जो है वो डिस्ट्रिक्ट MD है। ऐसे प्रवेंद्र कुमार अपने बीच में जो बैठे हैं, उनका लड़का वो भी IAS है। मित्रों, हमारे पास कमी नहीं है, लेकिन मेरा बहुत सीधा सवाल, सीधा आपको मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, नौकरियां है पर कितनी है वो भी हमको मालूम है। आप एक साइड पे मर्सिडीज है और आपके पास वो मारुति की 80 है, तो फिर आप उसको क्रॉस करने की बजाय आप ये कर सके कि भाई मैं मेरी गति से चलूँ, वो उसकी गति से चले, तो भी हम आगे बढ़ पाएंगे। और हमको जो बिजनेस के लिए हम जाना है उसके लिए हम रेडी हुए। मैं प्रवेंद्र कुमार को कहता हूँ कि प्रवेंद्र कुमार यूपी डिस्ट्रिक्ट के PCCI के प्रेसिडेंट श्री प्रवेंद्र कुमार अपना उद्बोधन देवे। आज इस आयोजन के लिए सबसे पहले सोसा जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया है, और मंच पे जो आसीन सभी हमारे साथी हैं और सभागार में जो उपस्थित लोग हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि इतनी संख्या में सब लोग आए हैं। लगभग हमारा ऑडिटोरियम पूरा भर चुका है। PCCI का जो गठन किया गया है, उसके पीछे यही एक मंशा रही है कि हम लोगों के समाज में सामाजिक उत्थान के लिए बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं, लेकिन आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कोई अलग से संस्था नहीं थी। तो इसमें ये विचार किया गया कि एक इस तरह की संस्था बनाई जाए, क्योंकि आर्थिक सशक्तिकरण के बिना सामाजिक सशक्तिकरण हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं उसकी एक कंपेटेबिलिटी कहिए या ज़रूरत है कि सामाजिक विकास के लिए आर्थिक विकास भी बहुत ज़रूरी है। तो आर्थिक विकास के ही मुद्दों पर हम लोग PCCI के माध्यम से बात करते हैं और उसी पर हमारा फोकस रहता है। अब इसमें हमें ये देखना होगा कि हमारी जो समाज की जनशक्ति है, मैन पावर है, वो अगर हम लोग ध्यान से सोचें तो कोई फील्ड ऐसा नहीं है कि जो हमारे बिना चल सके या हमारे बिना पूरा हो सके। तो हम लोग PCCI के माध्यम से ये प्रयास कर रहे हैं कि हम हर जिला स्तर पर एक डाटाबेस तैयार करें कि किस फील्ड में कितने लोग हमारे उपलब्ध हैं। है क्या कि हमारे व्यक्ति हर फील्ड में हैं, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, प्लम्बर हो, मैसन हो या किसी बिजनेस में है, सब तरीके के लोग हैं, लेकिन कोई उनका कंपाइल डाटा नहीं मिल पाता और वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तरह काम कर रहे हैं। अगर उसको हम किसी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के रूप में कन्वर्ट कर पाए तो निश्चित रूप से हमारी सेल भी बढ़ेगी और हमारा इनकम भी बढ़ेगी, जिससे हमारा आर्थिक सशक्तिकरण होगा। तो मेरा ये सजेशन सोसा जी को भी है कि इस लाइन पर सोचें। अगर हम कोई डाटाबेस तैयार कर लें
कि किस क्षेत्र के कितने लोग हमारे हैं, तो उनसे एक ऑर्गेनाइज सेक्टर हम डेवलप करें कि भाई आज हमको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए मान लो ज़रूरत है तो हमारे पास इस तरीके के लोग उपलब्ध हैं। मान लीजिए कि फैक्ट्री के लिए ज़रूरत है तो हमारे पास इतने लोग हैं, एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास इतने लोग हैं, कोई इंडस्ट्री है उसके लिए इतने लोग हैं, उनको हम बताएं जिससे कि वो उसमें आगे बढ़ेंगे, अच्छी इनकम होगी, उनका आर्थिक विकास होगा। तो आर्थिक विकास होगा तो निश्चित रूप से सामाजिक विकास भी होगा। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बाकी तो PCCI के बारे में तो बताया जा चुका है और धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ और भविष्य में कामना करता हूँ। अभी हमारे पूर्व विधायक जी ने जो बात कही है वो बड़ी इम्पोर्टेंट थी कि विधायक जी ने इतना बड़ा वादा किया है, तो हम आशा करते हैं कि विधायक जी अपने वादे पर निभाएंगे और ये वादा इन्होंने पूरा किया तो उस दिन हम लोग दिल्ली से भी ज़रूर आएंगे उस कार्यक्रम में और ये बहुत अच्छा एक अचीवमेंट होगा गुजरात के लिए नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए। धन्यवाद। થેન્ક નિલેશભાઈ જલવાકરનો પોતાનો એમનો પ્રોગ્રામ છે આપણી પછી અને 1 વાગ્યાના ગેસ્ટ આવીને બહાર બેઠા છે અને કોર્પોરેટર શ્રી છે આપણી વચ્ચે એમને સિદ્ધાર્થભાઈએ બોલાવી લીધા એટલે આપણે જે કાંઈ આપણે એમનો આભાર માનીએ અને સાહેબને વિનંતી કરું કે એમને ફૂલહારથી અને ખેસથી સ્વાગત કરે। आज जो ये 15 मिनट मैंने आपको हमारा जो प्रोग्राम था जो वेट किया और यहाँ मेरा 15 मिनट में साथ देने के लिए आपने सम्मान किया। वो हमारे को हमारी जिम्मेदारी है और हमारी फर्ज है, ये कोई हमारा उपकार नहीं है और ये हम भी आपके विचारधारा के साथ ही है। और 10 मिनट लेना है तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो ये कार्यक्रम है वो ओबीसी सोशल एक्टिविटी कमेटी का ही वो हम चलाते हैं, तो ये हमारा कोई आपके ऊपर हमारा ऋण नहीं है, आप समाज का हमारा ऊपर ऋण है, इसलिए आपका सबका धन्यवाद। ये मेरी जिम्मेदारी और फर्ज है, ये उपकार नहीं है। आप सबके लिए धन्यवाद। अभी मैं जिसको निमंत्रित कर रहा हूँ वो ओबीसी समाज के हैं, OR मौर्य नीलेश भाई जी। अभी जो इसको निमंत्रित करता वो OR मौर्य जी, वो हमारे ओबीसी के हैं, यूपी के हैं और बड़े उद्योगकार हैं। वो बॉम्बे में उसका कर्म भूमि है, श्री OP मौर्य साहब। और मैं एक बात और बता देता हूँ सर, 10,000 किलोमीटर जिसने सारथी का काम किया वो विचार हम करें 10,000 किलोमीटर तो कम बात नहीं है। इसके लिए मैं PCCI का एक डायरेक्टर, आप तो मेरे बड़े भाई हो, लेकिन आपका बड़े भाई के नाते और छोटे भाई के नाते मैं आपको ऐसे कर रहा हूँ, हमारे समाज के सभी लोग उनसे तालियों से थैंक यू। आदरणीय नगर सेवक साहब, हम चाहते हैं आप 1 मिनट बैठें प्लीज। ओबीसी का मतलब होता है, प्लीज हमारी बात को ध्यान सुनो, ओबीसी का मतलब होता है ओरिजिनल बुद्धिस्ट कम्युनिटी। और नगर सेवक साहब, आज से 2000 साल पहले जो अरबिस्तान, तुर्किस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, इराकिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये पूरा देश जो है सम्राट अशोक का देश था, वो भगवान बुद्ध की धरती पे था। और आप ये सोचिए कि इतना बड़ा भूभाग जो जहां सम्राट अशोक का राज था, जो सिद्धार्थ जी आप नहीं आए, मुझे सौराष्ट्र की धरती पर बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ भगवान बुद्ध की धम्म से आपने शुरुआत किया, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और मैं विगत 40 वर्षों से पूरे देश में ओबीसी धम्म दीक्षा का काम ही कर रहा हूँ। लगभग 100 से ज्यादा संस्थान हमने बनाए हैं। दिल्ली में हमारी 100 करोड़ की संस्था है, कभी भी आप जाइए 5,000 लोगों के लिए हमारे पास सावित्री ज्योतिबा फूले के नाम पे ट्रस्ट है। तो ये आज जो हम 40 साल से पूरे देश में ये दीक्षा का धम्म का काम कर रहे हैं, तो हमने ये देखा कि ये दीक्षा और धम्म का कोई मतलब नहीं है जब तक कि आपके पास धन ना हो। इसीलिए हमने गवई साहब को लेकर के और आज से 5 साल पहले NBFC कंपनी बनाई। हम
क्योंकि हमारे सारे बैंकर्स लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इसके पहले भी सारे बैंकर्स ने कहा था कि भाई ये नौकर से अच्छा कि मालिक बनना चाहिए। तो आप सारे बैंक में भले मैनेजर हैं, हम चाहते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने, उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की। आप बताइए, आप में से आपके पास कोई बैंक है क्या? इसीलिए लॉर्ड बुद्धा एनबीएफसी कंपनी बनाई गई है। और जो हम लोगों ने लगभग 5 साल पहले शुरुआत की थी, 2.5-3 करोड़ हमारे पास जमा थे और हमने आरबीआई को मूव किया। उसमें आदरणीय सोसा साहब भी उसमें हैं। सोसा साहब जैसे लगभग 200-250 आईएएस आईपीएस उद्योगपतियों को हमने इकट्ठा किया। जब हमने फाइल मूव की आरबीआई में, तो वहाँ एक जोशी जी पंडित जी वहाँ बैठे थे, उन्होंने बुद्धा के नाम पे फाइल रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा आप 10 करोड़ लाइए। तो ओबीसी समाज उसमें, उस कंपनी में लगभग 100 से ज़्यादा ओबीसी समाज के लोग हैं और तथागत बुद्ध भी एक कुनमी समाज के थे। और यहाँ का जो 1/4 पॉपुलेशन जो कोली समाज है, उनकी माता भी, वो भी इतिहास जान गए। डॉक्टर बाबा साहब ने कहा कि अपना इतिहास समझो। यहाँ पे जो काचिया पटेल, लेवा पटेल हैं, वह भी धर्म की तरफ आ रहे हैं। और यहाँ पे जो कोली पटेल हैं वह भी आ रहे हैं। मैं संकल्प भूमि का ट्रस्टी भी हूँ मैं। इस तरह से सूरत के हर जगह पे लगभग 7 संस्थान गुजरात में हमने स्टैंड किए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि साथियों, हमारी खुद की अपनी एक बैंक हो, खुद का अपना एक बिजनेस हो, खुद का अपना एक व्यापार हो। और हम जो 90% लोग हैं और जो 10% लोग जो इस तरह से लूट करके अपना इस यहाँ का पैसा बाहर जा रहे हैं, सोसा साहब यहाँ से पैसा है अपने देश में यहाँ हो, हमारे लोग आगे आए। और मैं आज के इस कार्यक्रम से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपना नोट अपनों को, अपना वोट अपनों को, अपना नोट अपनों को। जैसे हमारे ओबीसी भाई बैठे हैं, हमारे बाबा साहब की विचारों से सहमति है, तो हमारा पूरा नोट उनको जाना चाहिए। और आज के बाद मैं यही संकल्पना आप सबसे रखना चाहता हूँ। जिस तरह से मैंने इसके पहले लगभग 10,000 किलोमीटर की मैंने धम्म यात्रा की, पूरे देश में हमने करोड़ों लोगों को दीक्षा का कार्यक्रम हमारा शुरू है। और हमारा एक टारगेट है 25 करोड़ से ज़्यादा लोग दीक्षा देंगे। उसमें मोदी साहब भी दीक्षा ले लेंगे आखिरी में, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो खूब भगवान बुद्ध के धम्म की बात करते हैं। तो बिना देखिए सोसा साहब, मैं आधे मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ। आज ईरान में भी तमाम मस्जिदें खुद के लोग वहाँ तोड़ रहे हैं। और अमेरिका में यहाँ भारत का एक जो है स्ट्रीट डॉग, जो पूरे कोरिया का भिक्खु संघ निकला, पूरे विश्व में निकला है। आज उसको जरा नेट पे आप देखिए, पूरा अमेरिका नतमस्तक हो रहा है। तो तथागत बुद्ध के सामने पूरी दुनिया नतमस्तक होगी। आप पैसे पे, धन पे, व्यापार पे बुद्ध के 5 सील को आप जिस दिन अपनाएंगे, तो ये मैं आपको नक्की बता दूं कि जो महावीर को मानने वाले जैन समाज को, महावीर से को तो कुछ लोग 1-आधे% भी नहीं है, लेकिन बुद्ध को तो पूरी दुनिया आप जानती है। तो हमारे सारे लोग हम पंचशील के मार्ग पर चलेंगे तो पूरा अर्थतंत्र हमारे हाथ में होगा। धन्यवाद। जय हिंद महोदय। बहुत बढ़िया मौर्य साहब, आपने खूब अच्छी तरह से કોળી સમાજ ભગવાન ગૌતમ બુદ્ધ છે ને, એ કોળી સમાજના ભાણેજ હતા સાહેબ, તમને કહું આ આપણી ધરોહર છે। કોળી સમાજના એ ભાણેજ છે ભગવાન ગૌતમ બુદ્ધ। અને એ જાણકારી માટે મૌર્ય સાહેબ ખૂબ ખૂબ આપનો આભાર। હવે મારી ઈચ્છા એવી છે કે જો આપણી પાસે 5 થી 7 મિનિટ છે, મિત્રો પ્રશ્નોત્તરી જે આપને કરવી છે, ભાઈ કરણભાઈ તમે અહીંયા આવી જાઓ, જે લોકોને પ્રશ્નો કરવા હોય। અને લગાડી સાહેબ આપ પ્રશ્નોત્તરી લઈએ, કોઈ વિષય હોય તો કોઈ ક્યાંથી બોલશો તો ચાલશે। સીધું સાધું કે ભાઈ આ હાલ ગવર્મેન્ટ જોબ કરું છું અને 3 જોબ છોડી દીધી છે અને હવે બિઝનેસ માટે જ આવ્યો છું। છેલ્લા 1.5 વર્ષથી અમારો રિસર્ચ છે। મારો પ્રશ્ન એ છે કે મારો 17 કરોડનો પ્રોજેક્ટ છે, એના અંદર આપ સબ લોકો એટલે કે તમે બધા લોકો મળીને મને કઈ રીતના હેલ્પ કરશો? તમને મળી લેજો। શું તમારું માનવું છે? 17 કરોડમાં કઈ મદદ નહીં, 17 કરોડ તમારી જે પ્રોજેક્ટ હોય બરાબર એ છે, પણ મેં સ્કીમની વાત કરી તો તમને એમાં ઇન્ટરેસ્ટ સબસિડી મળવા પાત્ર છે। આપ જે પણ બેંકમાંથી લોન લેવાના છો એમાં અમે 5% થી 7% સુધીની ઇન્ટરેસ્ટ સબસિડી આપણે રિમ્બર્સ કરશું 5 વર્ષથી 7 વર્ષ સુધી। અને જ્યારે આપ સરકારમાં એસજીએસટી પેમેન્ટ કરવાના છો તો આપનું જે નેટ એસજીએસટી વધવાનું છે, એ નેટ એસજીએસટી જ્યારે આપ પેમેન્ટ કરશો તો એનું પણ અમે 5 વર્ષ સુધી 100% સુધી આપને રિમ્બર્સ કરશું। અને આ સિવાયની મેં ઘણી સ્કીમની વાત કરી છે, અમારી વેબસાઇટની આપ મુલાકાત લઈ શકો છો। લોંગ વિઝન સાથે મારી સાથે ચાલી શકે એવા વ્યક્તિ। ઓકે, થેન્ક યુ સર।
મને મોટી મોટી વાત લાગી તો આપણામાં એટલી બધી એમ કઈ હા બોલો સર. સર મારું નામ સોલંકી હિતેશ છે. મેં એન્જિનિયરિંગમાં કરેલું છે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ કોમ્યુનિકેશન અને અત્યારે જોબ કરું છું અને આગળ ટીએલસી સ્ટાર્ટ અને એમાં રોબોટિક્સમાં કોડિંગમાં સ્કૂલમાં મેં ઘણી જગ્યાએ લેબ ડેવલપ કરીને સ્ટુડન્ટ્સને ટ્રેનિંગ પણ આપેલી છે એઆઈ બેઝ ઉપરની. મારે વિચાર છે કે ભવિષ્યમાં આગળ મારે ખુદની કંપની કે ખુદની ટ્રેનિંગ સેન્ટર કે પોતાની જ ઓર્ગેનાઇઝેશન કે આવે જ ઘણી વખત સ્કૂલમાં લેબ ઇન્સ્ટોલ કરવાનું એવું બધા તમે કઈ રીતે સ્ટાર્ટ કઈ રીતે કર્યું? જ્યારે મારી સ્કીમનું માર્ગદર્શન આપેલું ત્યારે તેમાં મેં વાત કરેલી શ્રી વાજપેયી બેન્કેબલ યોજના. એમાં 25 લાખ સુધીની બેંક દ્વારા લોન આપવામાં આવે છે અને SC/ST એન્ટરપ્રિન્યોર માટે 40% સુધીની અમે સબસિડી આપીએ છીએ, મેક્સિમમ 5 લાખ સુધી. તો આ લોન આજે આપ આમાં લોન લેવા ઈચ્છતા હોય તો પહેલાં DAC-માં અરજી કરો, અમે આપ કહેશો એ બેંકમાં ફોરવર્ડ કરી આપશું અને આપને 5 લાખ સુધીની સબસિડી મળશે. બેંક માટે કઈ રીતે રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું? જો CS આવે કંપની સેક્રેટરી એનો તમારે કોન્ટેક્ટ કરવાનો, નહીતર મારો નંબર લઈ લે 98251 બધા લઈ લો, પણ પછી અડધી રાત વાળું ન કરતા. મને ફોન કરવો સવારે 11:30 પછી અને 6-7 વાગ્યા સુધી તમને છૂટ, 1 કલાક તમારા માટે વધારે રાજકોટ માટે. બરોબર 98251 464448 લગભગ બધાના મેસેજમાં મારો નંબર છે, છતાં તમને આપી દીધો છે. ગમે ત્યારે કંપની સેક્રેટરી, તમારે કંપની સ્થાપવી હોય તો શું કરી શકાય, તમારે LLP કરવી હોય તો શું કરી શકાય, ભાગીદારી પેઢી કરવી હોય તો શું, એના ફાયદા નુકસાન, આ બધું તમને આપણે હવે પછીની ડિજિટલનું યુગ કીધો ની આપણો છે, એટલે કે આપણે બધા ઝૂમ મીટિંગ દ્વારા આવા પ્રશ્નો તમે બધા અમને આપશો તો BCCI દ્વારા આપણે CA ને તમારી સામે હું બેસાડીશ, CS ને તમારી સામે બેસાડીશ ને એની હારે આપણે કોન્ફરન્સમાં વાત કરી અને તમારા જેટલા પ્રશ્નો છે એને હું 100% નલને અવોઇડ કરવાની 100% કોશિશ કરીશ મિત્રો. હા કમલભાઈ છે ને આવો એક કાર્યક્રમ ડિસિઝનો ભાવનગરમાં અમે કરશું એટલે બધાને ભાવનગર માટે સ્વાગત. બીજું કે મારી પાસે કઈ પ્રશ્ન નથી, મારે ખાલી એટલું જ પૂછવું છે કે આપણા કોઈ બિઝનેસમેન યુગાન્ડા અથવા કેન્યામાં હોય તો જણાવજો. અહીંયા એના માટે તો અત્યારે અમારી પાસે ડાયરેક્ટલી કોઈ સંપર્ક નથી, પણ થઈ શકે. અચ્છા બીજા કોઈ મિત્રો કોઈનો પ્રશ્ન? યસ. મારું નામ રોહિત રાઠોડ છે. હું મારી એક ફર્મ છે યસ એન્ટરપ્રાઇઝીસ કરીને. તો મારો પ્રશ્ન એ છે કે SC/ST માટે જે બેનિફિટ્સ હોય છે સાથે સાથે એ વ્યક્તિ જો એક સર્વિસમેન હોય તો એના માટે હું સ્પેશિયલ કઈ બેનિફિટ્સ હોય છે? અમારી જે સ્કીમ છે જનરલ કેટેગરી માટે મેં વાજપેયી બેન્કેબલમાં વાત કરી તો 30% છે અને પછી 40% SC/ST એક્સ સર્વિસમેન વુમન અને 40%થી વધારે જે દિવ્યાંગ હોય એના માટે 40% છે. તો પછી 40% ઉપર એના માટેની કોઈ સ્કીમ નથી. તો આપ SC એઝ એ SC એન્ટરપ્રિન્યોર ઓર એઝ એ એક્સ સર્વિસમેન આપ બેનિફિટ લઈ શકો છો. બંનેમાં 40%ની સબસિડી મળવા લાગે છે. પોરબંદરથી આવું છે. અમારે પોરબંદર છાયામાં છે ને, છાયા એ મિની ઇઝરાયલ કહેવાય. ત્યાંથી કારીગર વર્ગ ઇઝરાયલ ખૂબ ગયા છે, બરાબર. અને હોમ કેર માટે બહેનો પણ ખૂબ જાય છે. તકલીફ ક્યાં આવે છે કે 5 લાખથી 25 લાખની જરૂર પડે છે. હોમ કેરમાં 20-25 લાખની જરૂર પડે અને કડિયા કામ કે કારીગર વર્ગ હોય તો એને 5-7 લાખમાં. તો એ પૈસાની સગવડ કઈ રીતે અમારે કરવી? ઘણા છોકરા એવા છે જવા માટે તૈયાર છે, દીકરીઓ બહેનો માતાઓ જવા તૈયાર છે 40 વર્ષની ઉંમરની અંદર, બરાબર. પણ એ સગવડ માટે એને પોતાનું ઘરનું બધી આખી મિલકત ગીરવે મૂકવી પડે, બરાબર. ઘરેણા છે કે કોઈ બીજો હાથ, તો એના માટે સરકાર કઈ તમને મદદ કરે? અમારી સ્કીમ છે ઉદ્યોગો સ્થાપવા માટેની છે. આ ફોરેન સ્ટડી માટેના હોય છે અને અલગ અલગ બોર્ડ અને નિગમ હોય છે, એમાંથી આપણે માહિતી મળી શકે. નમસ્કાર, મારું નામ છે દીપક વાણવી, મારા વાઇફ છે અલકા વાણવી અને એન્ટરપ્રિન્યોર છે. અને લાલાની સાહેબનો આભાર કે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતમાં એમને માઇક્રો કેટેગરીમાં ફર્સ્ટ ઇનામ આપેલું છે હમણાં જસ્ટ. અમારી કંપની 10 વર્ષ થયા છે અને તમને જણાવતા આનંદ થાય છે કે હજી અમે 1 પણ રૂપિયાની લોન લીધી નથી. અને
નહીં હવે અમે એ કેપેબલ થયા છીએ કે અમે સ્કેલેબલ વેલ્યુ જે હોય ને ઇનામ કઈ બાબતમાં માઇક્રો બેસ્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઇન એસસી એન્ટરપ્રાઇઝીસ આપણે કઈ આપ્યું તો નથી ને 2 લાખ રૂપિયા ઇનામ આપ્યા છે જસ્ટ 5 દિવસ પહેલા વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત કંપની તમારી તાકાત ઉપર ઊભી કરી જી યસ વેરી ગુડ હવે અમે અમારી સ્કેલેબલ વેલ્યુ ઊભી કરી છે હવે we can see now to a bank and we will go for IPO within 1000 days. This is our mission with our chief guest. અમે માઇક્રો કેટેગરીમાં આપ્યું નેક્સ્ટ 2 યર્સ વાઇબ્રન્ટમાં પછી લાર્જ અને કેટેગરીમાં બિઝનેસની ABCD શીખવા માટે મારે ત્યાં ટ્રેનિંગ સેન્ટર છે ફેક્ટરીએ વેલકમ તમારો નંબર બોલો 799 799 08 08 234 234 05 દીપક વાણવી અને એમના ધર્મપત્ની માટે પણ આપણે તાળીઓથી ગડગડાટ થઈ જાય. આપણા સમાજમાં મને એમ કે તમે લેટ આવ્યા તમારું હું સ્વાગત કરું છું. નહીતર મને એમ હતું કે છોકરા બધા નવડાઈને આવે ઘણા ઘર આપણા ભાઈઓ એવું હોય, પણ તમે એટલા સારા છો એટલે તમને હું મારો અમર રોકડા વાળા મને ઉધાર નથી રાખતો કોઈનો, એટલે તમને મેં આપી દીધું. અચ્છા, અહીંયા મોરિયા સાહેબ સુરેન્દ્રનગર થી આવ્યા છે. અહીંયા મારા ઘણા મિત્રોએ જે આપણે આજનો વાગોળણ કર્યું છે સમજી લેજો. આ સમાજ માટે કંઈક ને કંઈક આમાંથી કંઈક હીરાઓ ઉત્પન્ન થાય. અને જે સિદ્ધાર્થભાઈ નો નેમ સૌરાષ્ટ્રમાંથી 1000 એન્ટરપ્રિન્યોર ઉભા કરવા છે. વાણવી સાહેબ, તમારી આગેવાનીમાં અમે ટ્રેનિંગ સેન્ટર અને પીસીસીઆઈ ને હું સાહેબને પણ વિનંતી કરીશ, રાજપૂત સાહેબને અને લાડાણી સાહેબને પણ, કે આપણે સાથે મળી અને સૌરાષ્ટ્ર ઝોન ની અંદર અહીંયા કઈ ને કઈ સેન્ટર ઊભું કરીએ, અને જેથી કરી અને ભવિષ્યની અંદર આપણા સમાજના લોકોને કોઈને કોઈ નાનો મોટો બિઝનેસ કરવો હોય તો એને અલગ અલગ પ્રકારના ટ્રેનિંગ સેન્ટરમાં આપણે એને જ્ઞાત કરીએ તો જ આપણો વિકાસ થશે. હવે વધારે આપણી પાસે સમય નથી. અમે ગાંધીનગર મળ્યા હતા ત્યારે અમે એક લાખુતા એનડીએફસી કંપની માટે પણ તૈયાર કરશું. એક વ્યક્તિ 5 એન્ટરપ્રિન્યોર તૈયાર કરશું. સવારના પોણા 2 થઈ ગયા. ભલે પેલા લોકોને આપણે એનો આભાર માનીએ અને ભાઈ શ્રી રાજકોટ સાહેબને વિનંતી. साथियों 2 मिनट में बताया उसने अच्छी बात रखी. खास करके आभार विधि तो हमारे नाथू भाई सोसा साहब की और साथियों हमारे लाडाणी साहब ने हमको बहुत बड़ा सपोर्ट किया और हमारे SC/ST हब के कुलदीप राजदूत साहब ने हमको कन्विंस किया. सबसे बड़ा आभार तो हमारा सिद्धार्थ भाई परमार का है और हमारा CK राठौड़ साहब है, मावजी भाई राखैया है, हमारे वसराम भाई सागटिया है, हमारे बेन जी जयाबेन सोमैया, और आप लोगों को यहाँ इतनी संख्या में आए आपका धन्यवाद करता हूँ. यहाँ भोजन ये लेफ्ट साइड में जो लगाए हैं बुफे लेना है. साथियों, एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमने जो ये कार्यक्रम लगाए है हमारा अनामिका बुद्ध विहार ट्रस्ट की ओर से. हमारे बुद्ध विहार में कोई फंड नहीं है. हाँ, लाडाणी साहब और जो हमारे कुलदीप राजपूत साहब है, ये थोड़ा बहुत आधा अधूरा फंड इनकी ओर से गवर्नमेंट की गाइडलाइन से मिलता है. थोड़ा बहुत हमें ट्रस्ट की ओर के थोड़ा हुआ है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ हमने दान पेटी लगाई है. आप कुछ नहीं तो कुछ प्लीज दीजिए और भोजन पाइए. नमो बुद्धाय. जय भीम. थैंक यू वेरी मच. બધા પોતાની જગ્યા ઉપર ઊભા થઈ જશું. राष्ट्रगीत शुरू करते हैं. शुरू कर. जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा. जनगण मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय.
એમાં આપનો સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. जय भीम, जय संविधान. जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा. जय भीम, नमो बुद्धाय. सौनो आभार.